ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹੇ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕਢੇਵੇ ਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋਹ ਕਰੋਣੀ ਚਲਤ ਨ ਅੰਤ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼। ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਧੇ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ। ਸਗਲਿਆਂ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਏਕ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ, ਭੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਭੈ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਜੋ ਇੱਕ ਭੈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਭੈ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਝ ਹੈ, ਉਹ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਈਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਭੈ ਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਵੰ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭੈ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੈ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੈ ਪਈਏ ਤਨ ਖੀਣ ਹੋਏ, ਲੋਭ ਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਜਿਉ ਬੈ ਸੰਤਰ ਧਾਤ ਸੁਧ ਹੋਏ, ਤਿਉ ਹਰ ਕਾ ਭਉ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਵਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਮਾਮ ਦੁਰਮਤੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੀਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਭੈ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਤੇ ਹਸਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਇਹ ਈਸ਼ਵਰੀ ਭੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖੇੜਾ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਵਹੇ ਸਦਵਾਓ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਥੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੂਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਵਨ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵਗ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਬਾਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਵਨ ਨੂੰ ਬੇਮੁਹਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੈਸੇ ਪਵਨ ਨੂੰ ਬੇਮੁਹਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਵਨ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲਖ ਦਰਿਆ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਨਦੀ, ਨਾਲੇ, ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਗਿਆਨੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਪੂਰੇ ਹੜ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ
शहर नूं ढा लाणी शुरू कर दित्ती। बाबे फरीद दा भी अस्थान दरिया सिंध दे किनारे। सारे कस्बे वासी आके फरियाद करते ने बाबे फरीद नूं कि जिस ढंग नाल ये दरिया चढ़िया ते जिस ढंग नाल इसने ढाल आई है, इस ढंग नाल ते साडा शहर बचना बड़ी औखी गल है ते थोड़ा डेरा भी बचना बहुत औखी गल है। बाबा फरीद दरिया सिंध दे कंढे आके खड़े होए, ओदियां उछलदियां लहरां नूं वेखदे ने। ओ हड़ ते आया है, बेमुहारे है, ऐसा आप नूं प्रतीत होया है। तो आप कहंदे ने फरीदा कंदी वहण न ढाए, तू भी लेखा देवना। ऐ दरिया एक किनारे ना ढा, तबाइयां ना लिया, बर्बादियां नूं जन्म ना दे, तैनू भी लेखा देना पेगा। इतनी गल आखण दी देर से दरिया पहले नालों भी ज्यादा हड़ ते आ गया, पानी वध गया, ढा पहले नालों भी जोर दी लग गई। तो आप दे हाथ जुड़ गए, आपने सिर झुकाया ते आप दे मुंहों ए बोल निकले, कंदी वैन न ढाए, तू भी लेखा देवना। फरीदा जिधर रब रजाए, वैन ते दाऊं गांव करे। दरअसल ते रब दी रजा दे चल रहा है, ये ते रब दे भय दे चल रहा है, ते जिधर रब चला रहा है ये उधर चल रहा है। ये ढा भी रब दी रजा दे लगी हुई है। इस वास्ते रब दी रजा दे सारे राजी हो, सारे मस्तक झुकाओ, सारे दुआ करो, सारे हथ जोड़ो, हे अकाल पुरख, हे रब, हे खुदा, जो तेरी रजा असी उस दे च राजी। कहंदे ने ऐसी दुआ करदियां दरिया अपने सीमत दायरे दे च वगण लग पिया। ये साखी, ये सलोक इस गल दा सबूत मुहैया करदा है कि सब कुछ मर्यादा दे चाहे ते प्रभु भय दे चाहे। साहिब कहंदे ने अनंत दरिया, ये लखां नदी नाले सब भय विच चल रहे ने। भय विच अगन कड़े वेगार। ये जो अग्नि सेवा कर रही है तरह तरह दी, अजोके युग दे ते अगन दी बहुत वड्डी सेवा है। रेलां मोटरां गड्डियां अग दे आसरे ते चल रही ने, और इस तो इलावा बड़े बड़े कारखाने अग दा ही इस्तेमाल कर रहे ने। मनुख दे शरीर दे पाचन शक्ति ते जिंदगी देण दा कम अग कर रही है। अग बहु पक्षी सेवा दे जुटी हुई है। साहिब कहंदे ए भी भय दे है, अगर ये मर्यादा च ना होवे, भय दे च ना होवे, ते ऐसा भी हो सकता है अग ठंडी हो सकती है। अग सेक देण दी थां ते ठंड देण लग पवे, ते जे अग ठंड देण लग पवे तां अग अग ही ना रही। अग दी जो सेवा है वो सेवा ही ना रही। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहंदे ने इत्थे जो अग्नि है ये भी प्रभु दे भय दे चल रही है। कहंदे ने कबीर दे घर नूं जद अग लगी ते घर सारा जल के खाक होया, खड्डी भी जल गई, कपड़े भी जल गए, साजो समान सारा जद घर दा जलिया। ते आप कहंदे ने आपे पावक आपे पवना, जारे खसम तार आखे कवना। हे खसम, अज तू मेरे घर दे च आया है अग दे रूप विच, अज तू मेरे घर दे च आया है पवन दे रूप विच, ते जद तू ही मेरा घर साड़ना है ते बचाएगा कौन? जद तू ही अग है ते मेरे घर नूं लगी है, हे प्रभु हुण होर कौन रखवाला होवेगा, हुण होर कौन बचावेगा? अग दे विच भी अकाल पुरख दा रूप वेखना, भाव उदी रजा वेखना, उदा हुक्म वेखना, अग नूं भी प्रभु दी मर्यादा दे विच वे। ये भगतां दी एक दृष्टि होंदी है, ये भगतां दी एक सोचनी होंदी है। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहंदे ने भय विच अगन कड़े वेगार, भय विच धरती दब्बी भार। अनेकां तरह दे भार दे थल्ले दबी ये धरती, जिहदे ते पहाड़ ने, दरिया ने, दरख्त ने, पशु पंखी ने, मनुख ने, अनेकां तरह दा बोझ लैके जो ये धरती दबी हुई खड़ी है। सतगुरुदेव जी कहंदे ने ये भी भय दे, ये भी किसी मर्यादा, ये बेमर्यादा नहीं, ये प्रभु दे भय तो बिना नहीं।
ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਭਾਰ। ਇੰਦਰ ਬੱਦਲ ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਡਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਦਲ ਉੱਪਰ ਮੰਡਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਮੰਡਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਰਾਜਾ ਧਰਮਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਭੈ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੈ ਐਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੜ ਚੇਤਨ ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਸਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਭੈ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਧਰਮਰਾਜ ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਪਿਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਭੈ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਜੋ ਅਨੰਤ ਕੋ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਯ ਇਤਿਆਦਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੋਧਾ ਹੈ, ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ, ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਭੈ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰੀਏ, ਡਰ ਬਿਹੂਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਡਰੇ ਬਿਆਪੀ, ਬਿਨ ਡਰ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਭਗਤਨ ਕਾ ਸੰਗੀ, ਭਗਤ ਸੋਏ ਦਰਬਾਰਾ। तो साहिब फरमान करते ने, ये योधे, ये महाबली, ये सूरमे सारे भै दे च ने। भै विच आवे जावे पूर, जिंदगियां दे पूरां दे पूर जो जमदे ने मरदे ने, भै दे च ने। चाहे बच्चा है, चाहे जवान है, चाहे बुढ़ा है, ये जो जन्म चल रहा है, ये जो मरण चल रहा है, ये पूरां दे पूर जो आ रहे ने, जा रहे ने, सारियां दे उत्ते भै दा लेख लिखिया है। भाव सब दे अंदर भै चल रहा है ते भै व्यापक रूप दे हर एक दे अंदर काम कर रहा है और वख-वख काम कर रहा है। किधरे मौत दा भय है, किधरे बीमार पै जाण दा भय है, किधरे ऐसा भय है कि कमाया होया धन मेरा नाश ना हो जाए, किधरे ये भय है कि सील संजम कीती हुई भक्ति मेरी नष्ट ना हो जाए। तो भय मनुख दी सुरक्षा है, भय परमात्मा वालों दुख ते तकलीफ नहीं। अगर बीमार हो जाने दा भय ना होवे ते मनुख इतना खावे कि पशुओं नूं भी मात कर देवे। ये बीमार हो जाने दा भय मनुख नूं संजम दे च रखदा है। अगर विकारां दे च मलीन होण दा भय ना होवे ते मानसिक रोगी होण दा भय ना होवे तो फिर जगत दे च कोई भी सदाचारी नहीं रहेगा, सारे दुराचारी बन जाणगे। भय करके कोई सदाचारी है, भय करके कोई संजमी है, भय करके कोई योद्धा है, महाबली है, सूरमा है। दरअसल भय मनुख दी जीवां दी आंतरिक सुरक्षा है, न कि एक पीड़ा है, न कि एक दुख है। तो सह फरमान करते ने, भय विच राजा धर्म द्वार, भय विच सूरज, भय विच चंद, को करोड़ी चलत न अंत, भय विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ। जीवन नू भय दे च रख के, प्रभु भय दे च रख के कोई सिद्ध बने है, कोई बुद्ध बने है, कोई देवता बने है, कोई नाथ बने है। रब्बी भय नू एक पासे कर दईए, ना कोई देवता बन सकता है, ना कोई नाथ बन सकता है, ना कोई बुद्ध बन सकता है, ना कोई सिद्ध बन सकता है। सिद्धियां प्राप्त होंदियां ने दरअसल प्राकृतिक परमात्मा दे भय नू मन के। बुद्ध प्राप्त होंदी है अपने आप नू मर्यादा दे च रख के, प्रभु भय नू मन के। और इसे तरीके नाल आत्म प्रकाश दा चानना हो जांदा है, दीवा जल जांदा है, मनुख देवता बन जांदा है। पर बनन दा ढंग है प्रभु दा भय। कोई नाथ बन जांदा है, भाव अपने जीवन नू नथ पा लैंदा है, सारियां इंद्रियां नू नथ पा लैंदा है, नाथ बन जांदा है। तां इह प्रभु भय तो बिना इतनी उच्च पदवी दा प्राप्त करना कठिन है। भय विच आडाणे आकाश, ये जो तने हुए आकाश, ये जो व्यापक रूप दे खड़े ऊपर आकाश ने,
ਸਤਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭੈ ਦੇ ਚ ਨੇ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ ਜਾਵੇਂ ਪੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਮਹਾਬਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਭੈ ਦੇ ਚ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੈ ਦਾ ਲੇਖ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਭੈ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ, ਸਗਲਿਆਂ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਏਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭਉ, ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ परिपूर्ण परमात्मा है जो आकार तो रहत है, भय तो रहत है। जद कोई प्रभु दा भय मन लैंदा है तां फिर संसार विच निर्भय हो जांदा है ते प्रभु दा भय उसनूं शुद्ध कर दिंदा है, प्रभु दा भय उसनूं निर्मल कर दिंदा है, प्रभु दा भय आत्मिक आनंद तक ले जांदा है। इस वास्ते प्रभु दा भय मनुख मात्र दी एक लोड़ है, एक सुरक्षा है और एक बहुत वड्डी दात है जो जीवां दी झोली च परिपूर्ण परमात्मा ने पाके रखी है। मौत दा भय है, पशु पंखी कीड़े मकोड़े अपने आप नूं सुरक्षित थां ते लै जांदे ने, अपने आप नूं बचाउण दी कोशिश करदे ने। इह भय जे सारियां दे च ना होवे तां ना कोई अपनी तन दी हिफाजत करे ते ना ही कोई अपने मन दी हिफाजत करे। तो भय आंतरिक सुरक्षा है, बैरूनी सुरक्षा है। दूसरा श्लोक साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा, नानक निर्भव निरंकार और केते राम रवाल। निर्भव ते केवल निरंकार है, आकार तो रहत जो परिपूर्ण परमात्मा है। होर कितने राम इत्यादक जो कहे जाते हैं वो ते रवाल ने, प्रभु दे चरना दी खाक ने। भाव ईश्वर दे सामने कुछ भी नहीं है, ये ईश्वर दी कृत ने, ये जगत दे करता नहीं, ये ईश्वर दी कृत है। तो साहिब कहते होर केते राम रवाल, रवाल कहते खाक नूं। होर कितने ही राम प्रभु दे चरना दी खाक ने। केतियां कन कहानियां केते वेद विचार, कितने कृष्ण जी दियां गल्लां आखियां जांदियां ने, कथावां आखियां जांदियां ने, कितने ही वेद विचारक ने। साहिब कहंदे ने ये सब भय दे च ने, सारे परमात्मा दे भय दे च ने। केते नच्चे मंगते गिड़मिड़ पूरे ताल, कितने ही ऐसे नृतकार ने, नचदे ने, टपदे ने ताल दे च, पर उन्हां दे अंदर भाव इक्को ही काम करदा है, जगत दे पदार्थ दी मंग। उन्हां दा नचना, उन्हां दा टपना, उन्हां दा ताल दा पूरना केवल दुनियावी मंग ते खड़ा है। अगां चल के आप कहंदे ने बाजारी बाजार में आए कढ़े बाजार। इस तरह दे जेड़े नाटककार ने, नचण वाले ने, मंगते ने, बाजार विच आके तमाशा करदे ने और तरह तरह के कौतक वो जगत नूं विखांदे ने। और कौतक विखांदे आया कुछ गाउंदे ने। की गाउंदे ने? गावे राजे राणियां बोले आल पताल। गांदे ने राजे राणियां दे किस्से, गीत गांदे ने, महिमा गायन करदे ने राजियां दियां, राणियां दियां। और बोले आल पताल, ऐसा बोलदे ने कि जैसे पाताल तो आवाज आ रही होवे, आकाश तो आवाज आ रही होवे, भाव समझ तो परे दी गल। ऐसे बोल बोलदे ने जो समझदे च नहीं आउंदे। गीत गाउंदे ने उन्हां दे जो हो गुजरे राजे ने, हो गुजरियां राणियां ने। लख टकणियां के मुंदड़े, लख टकणियां के हार। नचण लगियां वो अपने तन नूं सवारदे ने बड़े बेशकीमत गहणियां नाल। बड़े सुंदर कपड़े पहनदे ने, बहुत सोहणे गहणे पहनदे ने, राजियां दी नकल करदे ने, राणियां दा रूप धारण करदे ने, तरह तरह दे गीत गांदे ने, अपने आप नूं इस ढंग नाल सवार के। पर साहिब कहंदे ने जित तन पाईए नानका से तन होवे छा। जिस तन दे ते सुंदर कपड़े पाए जांदे ने, सोहणे गहणे सजाए जांदे ने, तन नूं खूबसूरत बनाया जांदा है, अंत दे विच ਇਹ ਤਨ ਛਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡਈ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਗਿਆਨ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ
और तरह तरह के रास इत्यादि दिखाने और इस तरह का नचना ते टपना, इहदे नाल प्रभु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इस तरह दी गल्लां दे नाल, इस तरह के गीतां दे नाल ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ज्ञान न गल्लई ढूंढी है, ज्ञान इन्हां गल्लां दे नाल प्राप्त नहीं होता। अनुभव प्रकाश, अनुभवी ज्ञान ईश्वर का कथना करड़ा सार फिर कैसे प्राप्त होता है? महाराज कहते एक कथन करना इतना औखा है जिवें लोहे नूं दंदां नाल चबाना होवे। जैसे लोहे नूं दंदां नाल चबाना अत्यंत कठिन है, इवें प्रभु का ज्ञान जबान दे नाल पूर्ण तौर ते कथन करना औखा है। करम मिले तां पाइए और हिकमत हुक्म खुआर। जे बख्शिश होवे उस अकाल पुरख दी, जे रहमत होवे उस परिपूर्ण परमात्मा दी, तां प्राप्त हो जांदा है। मनुख दियां होर सारियां सियाणपां, मनुख दियां होर सारियां चतराइयां ख्वारी नूं ही जन्म देंदियां ने। इतनी गल स्पष्ट है कि परमात्मा प्रसाद नाल मिलदा है, प्रयास नाल नहीं। धन प्रयास नाल मिलदा है, प्रसाद नाल नहीं। धर्म प्रसाद नाल मिलदा है, प्रयास नाल नहीं। पदार्थ प्रयास नाल मिलदा है, प्रसाद नाल नहीं। परमात्मा प्रसाद नाल मिलदा है, प्रयास नाल नहीं। दरअसल परमात्मा दा मिलना एक प्रसाद है, ईश्वर दा मिलना एक प्रसाद है। अज तक दे ब्रह्म ज्ञानियां ने ऐसा ही आख्या है कि तू मिलिया सानू साडे प्रयास करके नहीं, तेरा प्रसाद, तेरी बख्शिश, तेरी रहमत। इस वास्ते धार्मिक दुनिया दे प्रयास की महिमा नहीं, प्रसाद की महिमा है। हाँ, पदार्थ की दुनिया दे प्रयास की गल है, मुशक्कत की गल है, मेहनत की गल है, पुरुषार्थ की गल है। पर धार्मिक दुनिया दे प्रसाद की गल है। इस वास्ते उस सतसंग नूं जिथे कथा कीर्तन होवे लाजमी कुछ ना कुछ प्रसाद वंडिया जाता है, जो मिष्टान होंदा है, मिठा होंदा है। दरअसल एक इशारा है, एक प्रतीक चुनिया गया है कि प्रभु का प्रसाद अत्यंत मिठा है। ते प्रभु ते प्रसाद है, उदा कोई मुल नहीं, उदी बख्शिश है। साडे कीते कर्म, साडी कीती तपस्या, साडी कीती मेहनत उसका मुल नहीं है। वो जो मिले है ते उसका प्रसाद है। पर मेहनत कर करके, तपस्या कर करके ये पता चलता है कि प्रभु प्रयास नाल नहीं मिलता, प्रसाद नाल मिलता है। इस वास्ते साहब कहते ने ज्ञान उपरोक्त गल्लां दे नाल ते नहीं मिलेगा कि किसे राजे दे गीत गा लै, किसे धार्मिक राणियां दे गीत गा लै, नच लिया, टप लिया, रास पेश कर छड्डी, इहदे नाल परमात्मा दा ज्ञान नहीं मिलेगा। किवें मिलेगा? कथना करड़ा सार, ये ते लोहे दे चने चबाने ने। भाव इस छोटी जी जबान दे नाल पूर्ण परमात्मा दी गल आखनी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये ते करम मिले तां पाइए और हिकमत हुक्म खुआर। ये ते उसदी बख्शिश होवे ते ज्ञान अनुभव प्रकाश प्राप्त हो जाता है। और सारियां हिकमतां और सारियां जड़ियां चतराइयां ने ख्वारी नूं जन्म देंदियां ने, दुख नूं जन्म देंदियां ने। पौड़ी नदर करे जे अपनी तां नदरी सतगुरु पाया। एव जीव बहुते जन्म भर में आ तां सतगुरु शब्द सुनाया। सतगुरु जे वडदाता को नहीं, सब सुनियो लोक सवाया। सतगुरु मिलिए सच पाया, जिन्नी विचों आप गवाया। जिनी सचो सच बुझाया। इस पौड़ी दे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कर रहे हैं, जे ओ अपनी बख्शिश करे, रहमत करे, ते उसदी सब तो वड्डी रहमत दा सदका बहुत वड्डी प्राप्ति आउंदी है। किस दी? सतगुरु दी। कोई सतगुरु मिल पैंदा है, ज्ञान मिल पैंदा है, सत दा प्रकाश मिल पैंदा है। ये सब तो वड्डी बख्शिश है और ये सब तो वड्डी प्राप्ति है। इहो जी बहुते जन्म भर में आ तां सतगुर शब्द सुनाया। बहुत जन्म तक जीव भटकदा रहा, जमदा रहा, मरदा रहा। आखिर इस जन्म मरण दे गेड़े च पै रहे इस जीव दे उत्ते प्रभु दी बख्शिश होई। कढिए इस नूं गेड़े दे चों, कढिए इस नूं चक्कर दे चों, तां कि सतगुर दा मिलाप करा दिता ते सतगुर तो फिर बोल सुने।
ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਏ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਬੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਤੱਕ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾ ਬੋਧ ਇਹੀ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬੋਧ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵੜ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਤਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो इस तरीके नाल मां बाप नालों भी महान है गुरु। और साडे देश दे करीबन करीबन तमाम रिश्तियां दे चों गुरु दा रिश्ता सब तो उच्चा मनिया गया, सब तो महान मनिया गया, क्योंकि वो केवल जन्मदाता नहीं, वो जिंदगी दाता है। वो सिर्फ जिंदगी देंदा नहीं, जिंदगी नूं सफल करदा है। जिंदगी मिल गई केड़े कम दी अगर सफल नहीं हुई है, जन्म मिल गया ते जे जीवन दी जांच नहीं आई तो ऐसा जन्म केड़े कम दा। तो गुरु दी बहुत वड्डी ए बख्शिश है। महाराज कहते सतगुरु जेवड़ दाता को नहीं, सतगुरु जैसा होर कोई भी दाता नहीं। ए जगत दे सारे लोकी गौर नाल जो है सुन लो। सतगुरु मिलिए सच पाया, जिन्हें विचों आप गवाया। सतगुरु दे मिलाप दा सदका साधना करदियां होयां जिन्हां ने अपने आप दे चों आपा भाव गवा छड़िया, अहंकार गवा छड़िया, उन्हां नूं सच दी प्राप्ति हो गई, उन्हां नूं सच दा मिलाप हो गया। ते फिर सतगुर ने जिन सचो सच बुझाया, उन्हें ऐसी बूझ बुझा दी कि ये सच है, ये सच है। जीवन दे हर पक्ष दे, जीवन दे हर पहलू दे सच नूं वेखण दी जांच आ गई, सच नूं मनण दी समर्था मिल गई, सच नाल जुड़न दा ढंग आ गया। संसार नूं वेखना होर गल है, संसार दे सच नूं वेखना होर गल है। पदार्थ नूं वेखना होर गल है, पदार्थ दे सच नूं वेखना होर गल है। बंदे नूं वेखना होर गल है, बंदे दे सच नूं वेखना होर गल है। सूरज चंद तारियां नूं वेखना होर गल है, सूरज चंद तारियां दे सच्चाई नूं वेखना, हकीकत नूं वेखना, सच नूं वेखना होर गल है। ते जिन्हों संसार दे सच नूं वेखण दी जांच आ गई, दरअसल संसार दे रहिंदा होया निरंकार दे लीन हो गया। उन्हें जीवन दा मकसद हासिल कर लिया, उसने अपनी जिंदगी सफल कर ली। तो ये जिहड़ी सब तो वड्डी दात है, ये गुरु तो प्राप्त होंदी है। अकाल पुरख दी बख्शिश होई गुरु मिलदा है, गुरु दी बख्शिश होई अकाल पुरख मिलदा है। इस वास्ते इंज कह लईए पूर्ण तौर ते खेल ते सारे दा सारा ये परमात्मा दा है, अकाल पुरख दा है, पर फिर भी उसने विचोला बना रखा है। उसकी जब बख्शिश होंदी है तो फिर गुरु मिलता है, मनुखा तन मिलता है। ये परमात्मा की बख्शिश है कि मनुखा तन दा मिल जाना, ये अकाल पुरख की बख्शिश है कि गुरु दा मिल जाना। ये बहुत उसकी वड्डी बख्शिश है कि सतसंग दा मिल जाना, ते गुरु की ये बख्शिश है कि परमात्मा दा मिल जाना, ईश्वर दा जो है मिल जाना। जिन्हों गुरु मिले है ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहते हैं इस वास्ते सतगुरु तो वड्डा होर कोई दाता नहीं। क्यों कि परमात्मा ने ते गुरु मिलाया ते गुरु ने परमात्मा मिला दिता। समुचे संसार दा वड्डा दाता गुरु ने मिला दिता। इस वास्ते गुरु तो वड्डा दाता होर कोई भी नहीं। इस पौड़ी दे गुरु दी महिमा है। ते साहिब कहते गुरु दा जिहड़ा ज्ञान है, ये जिहड़ा हासिल करना है, ये राजे राणियां दे गीत नाल नहीं, किसे कहानियां दे नाल नहीं, बल्कि एक महान साधना दे नाल गुरु दा बचन मन के, गुरु दा शब्द सुन के उस सच नूं प्राप्त करना है और उस सच नाल जुड़ना है, और उस सच नाल जुड़ना है, और उस सच नाल जुड़ना है, और उस सच नाल जुड़ना है।